Assalamu alaikum everyone, this is Sabahat and welcome to my live session. So first of all, I'll go on different platforms and see who's live with me, and those of you who are watching me already, you can let me know where you're logging from. Are you from Pakistan, are you from abroad, or are you from any other province or district of Pakistan? So जो कोई भी जहाँ कहीं से भी है, do let me know. Yes, it's about time. So अब आप मुझे बता सकते हैं आप लोग कहाँ से लॉग इन कर रहे हैं, and you can also let me know what do you think about today's topic. So it's a very important topic which I plan to discuss. और दो आपको जो है यानी different captions नज़र आ रही होंगी. One would be open discussion and one would be the power of words. Actually, I have just said it. ये topic क्या है? Actually, it was that you should speak with purpose. That's the topic. So मैंने आपको आसान अल्फाज में बता दिया what I plan to talk about. But do let me know what you think about today's topic. And I'll just go on different platforms and see who is live over here with me. So I can just start. Okay. So I'm just going to have the session today, and then tomorrow I'm not going to have the session. Then obviously I'll be having this session on Saturday. Yes, cause सारा जो है plan जो है it has been altered due to missing one day in between. So now I have to do it on alternate days. Okay, so I can see Qazi Nadeem Ashra. Walaikum Assalam. I hope you're fine. So, the other day you were saying कि I should bring in some easy topic ताकि जो है common लोगों को समझ आए. So मैंने सोचा कि क्यों ना हम अल्फाज पे बात करें, क्योंकि अल्फाज एक ऐसी चीज़ है जो कि हर कॉमन इंसान को भी समझ आ जाता है, और जिसको कुछ नहीं भी आता उसको भी समझ आ जाता है कि वर्ड्स कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं. सो कमिंग टू माई टॉपिक, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू से कि जो वर्ड्स होते हैं ना, दे शेप आर रियलिटी एंड आर परसेप्शन. और जब हम वर्ड्स की बात करते हैं तो किस तरीके से लाइक वर्ड्स इट्स नॉट जस्ट आइडियाज़. लाइक वर्ड्स को हम ये नहीं कहेंगे कि वर्ड्स जो है अलग अलग लेटर्स हैं. जब वर्ड्स को आप जो है कंबाइन करते हैं तो उससे बहुत सी चीज़ें जो है मायने खेज चीज़ें बनती हैं. और यही वर्ड्स होते हैं जो कि शेप करते हैं how we think, how we act, and how we perceive the world around us. So जब आपके साथ जो है कोई भी हम कलाम होता है या बातचीत करता है या करती है, तो आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाता है कि किसका क्या माइंड सेट है, किसका क्या परसेप्शंस है अबाउट रियलिटी या वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन अराउंड, उसको वो किस तरीके से एनालाइज करते हैं. अगर मैं आपको इसमें स्टीव जॉब्स की एग्जांपल दूं तो स्टीव जॉब वाज yes, Qazi Nadeem Ashraf साहब, you're right, words are expression. Cause हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए किसी तो चीज़ का सहारा लेने की ज़रूरत होती है, and that सहारा is the words in the literal sense and in the expression sense as well. So expressions जो है without words नहीं आप दे सकते. Similarly एक्सप्रेशन जो है, आप अगर वर्ड्स ना भी एक्सप्रेस कर रहे हो तो आपके जो एक्शंस होते हैं, आपके जो इमोशंस होते हैं, दे आर ऑल्सो टेलिंग अ लॉट अबाउट हाउ यू आर फीलिंग, या आपको जो है क्या जो है आपके जज्बात हैं. सो जो इमोशंस होते हैं उसके लिए भी आप कुछ इमोशंस का सहारा लेते हैं, इवन दो इफ़ यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग इन वर्ड्स. सो इवन आप अगर म्यूट भी हैं तो यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ. Okay, I can see someone else at the top of my screen, so thanks whoever this is for joining. And नाउ आई कैन नॉट सी एनी वन. बट ये है कि आप में से जो भी जो है लाइव होंगे ऑन कैमरा, आई कैन टेक देम लाइव एट द एंड ऑफ द सेशन. इफ़ आई टेक यू लाइव इन द स्टार्ट, देन जो वॉइस होती है वो डिसरप्ट हो जाती है, एंड दैट बिकम्स a kind of a messy situation when I'm trying to upload the video. So उसमें जो है आवाज़ क्लियर नहीं होती. So unless and until you have very sharp auditory, so only then you'll be able to listen to that kind of voice which is in chorus. Otherwise it's always better if I take you at the end of the session. So जहाँ पर मैं वर्ड्स की बात कर रही हूँ, I was talking about Steve Jobs. Now Steve Jobs, he is known for his visionary leadership, and he used powerful language. अब वो कभी भी इस तरीके से बात नहीं करते थे कि भाई like
if he was speaking about something motivational, तो he would use some very powerful words जिससे जो है इंसान जो है motivate होता था. Like he would say like he would never talk about creating new products or creating good products because he was a visionary leader, and he would always use words such as कि changing the world. Now जब आप जो है, now you have to see कि whatever words you are using उसका क्या impact create हो रहा है. If you use the words okay we are creating this new product and this is a good product, so उससे जो है जो एक impact create होगा, that would be the impact कि okay this person has a business mindset and he's thinking about the products. But if the same person is using the word we are going to change the world, so जब ये इस तरह के फ़िक्रे इस्तेमाल होंगे तो it's going to inspire people and it's going to motivate them rather than कि people ये सोचें कि एक उनका fixed mindset हो जाए कि he is talking about a specific product. But when he is going to talk about या कोई भी अगर बात करते हैं changing the world, तो उसमें जो है एक broader perspective आ जाता है, and then you are prone to think about a lot of things rather than just fixating yourself about a particular thing. Tahir Yasin Khan, thank you so much for joining. Abdussalam, thank you so much for your compliment. आपके compliments हमेशा ही अच्छे होते हैं. Thank you so much. Okay, so अगर हम जो है like this is about Steve Jobs. एंड देन अगर आप अपनी डेली लाइफ में भी देखें कि अगर आप अपनी डेली लाइफ में इस तरह के फ़िक्रे इस्तेमाल करें, आई कांट डू इट, दिस इज़ डिफ़िकल्ट, सो इससे क्या होगा, इससे एक डेरोगेटरी इम्पैक्ट जाता है. इट्स नॉट समथिंग पॉजिटिव. बट येस, अगर जो है आप जो है अपने वर्ड्स को शिफ्ट कर लें, सेंटेंसेस को शिफ्ट कर लें, लाइक यू कैन ऑलवेज से आई एम वर्किंग ऑन इट, आई एम फिगरिंग इट आउट, rather than saying कि I can't do it. So you just have to reinforce your limitations. और उसको limitations को reinforce करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप अपना जो sentence structure है या जो words आप इस्तेमाल करें वो आप change करते हैं. Cause जो words हैं they hold a lot of power. अब यही words हैं जो कि negative को positive बनाते हैं और positive को negative बनाते हैं. So आपका जो है at the back of the mind आपका जो भी stance hai, if you want to create a positive impact you have to use words which are going to create positive impacts. But agar aapka jo mindset ye hai ki you have to create negativity, you have to promote toxicity, you have to promote and tell everyone कि everything is bad in this scenario and nothing is good, तो then आपके जो words होंगे वो आप उसी तरीके से पेश करेंगे और उसी तरीके से वो आपके मुंह से भी निकलेंगे. बट देन इफ़ यू वांट टू सी एन एनवायरनमेंट विच इज़ फुल ऑफ पॉजिटिविटी and you want to create a positive impact, then obviously you'll be using words which create positivity. Okay, Ashok Kumar, thank you so much for joining and watching this session. And Ashok Kumar, आप जब अपने जो है messages लिखते हैं ना, and when you delete it, so anyone who writes messages and deletes them, don't think I do not read those messages, क्योंकि आपके delete करने से पहले मैं वो पढ़ चुकी होती हूँ. And it's just that the way I respond to them. And if I do not respond to them, so I guess it's my decency not to respond to such messages. But then अगर उस पर आप मुझे इस तरह के comments देंगे कि I'm rude or whatever, so I really do not care. Cause वो messages ऐसे नहीं होते कि I want to respond on them anyway. Okay, I have Ijaz Ahmed Lashari. Thank you so much for joining and watching this session, and thank you for your compliment. अच्छा, देन जो है पावर ऑफ वर्ड्स में एक और जो चीज़ आ जाती है, इट इज़ द इंटेंशनल लैंग्वेज. क्योंकि जो इंटेंशनल लैंग्वेज होती है ना, नाउ लैंग्वेज में अगेन इट्स व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग, ऑब्वियसली वर्ड्स हैं, और आपके जो वर्ड्स हैं और आपकी जो कम्युनिकेशन है, इट हैज़ टू बी इंटेंशनल. अगर वो इंटेंशनल होगी तो ऑब्वियसली वट एवर यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट, इट हैज़ टू बी it has to be pre-planned. Now if I am taking these sessions and I'm trying to teach you the essences of life, so I would be like back in my mind everything is going on, and I am planning them, it's processing, and I'm uttering those things.
but that too is intentional cause I want to create a positive impact and I don't want कि मैं कोई भी ऐसा जो है word या कोई भी ऐसा sentence जो है utter करूँ which gives a very derogatory effect या आप पे जो है एक negative impression जो है create हो. So for that reason लैंग्वेज इट हैज़ टू बी इंटेंशनल, क्योंकि अगर लैंग्वेज इंटेंशनल होगी विद द पर्पस कि यू वांट टू बिल्ड रिलेशनशिप्स, और वो रिलेशनशिप्स कौन से होते हैं व्हेन यू वांट टू बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, या आप कोलैबोरेशंस करना चाहते हैं या आप पार्टनरशिप्स करना चाहते हैं from business point of view, या even you want to have good relationships with your friends या family friends या आपके family या आपके colleagues, and you want to have good cordial working relationships. So this is for this very reason आपकी जो लैंग्वेज है इट हैज़ टू बी इंटेंशनल, क्योंकि अगर लैंग्वेज अनइंटेंशनल होगी सो वट एवर यू गोइंग टू से इट्स नॉट गोइंग टू क्रिएट दैट इम्पैक्ट, रादर बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी विच आर गोइंग टू बी यूज्ड अगेंस्ट यू, cause you are not going to be thinking about the language, you're just going to be talking and it would be without any conscious planning. So अगर मैं इसको आपको उर्दू में एक्सप्लेन करूँ तो वो बातचीत जो कि आप जो है बग़ैर सोचे समझे बयान करते हैं उस बातचीत का कोई मकसद नहीं होता. सो आपने जो कुछ बोलना होता है उसका कोई मकसद होना चाहिए. अगर आप जो है किसी से कोई बात करते हैं तो एट द बैक ऑफ योर माइंड आपकी इंटेंशन वेरी क्लियर होनी चाहिए. इफ़ यू वांट टू बिल्ड business relationships, so you have to speak that kind of language which is intentional, which is purpose driven, and which is much more of business centric. So it has to be formal. अगर आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो yes it is intentional, but then आपकी जो लैंग्वेज होगी it's going to be more of friendly. आपकी जो टोन्स होंगी इट्स गोइंग टू बी मोर ऑफ इनफॉर्मल टाइप या फ्रेंडली टाइप होगी या कन्वर्सेशनल टाइप होगी. बट व्हेन यू आर डूइंग बिजनेस टॉक्स इट हैज़ टू बी फॉर्मल, इट हैज़ टू बी इन अ वे, इट हैज़ टू बी कन्वर्सेशनल, येस नो डाउट, क्योंकि विदाउट कन्वर्सेशन तो भी आप बिजनेस रिलेशनशिप्स भी नहीं फॉर्म कर सकते. सो इन ऑर्डर टू हैव बिजनेस रिलेशनशिप्स यू ऑल्सो need to have intentional you have to plan your thought process and what you are going to talk about, क्योंकि you have to have those points, those certain points. Okay, this is number 1, this is 2 3 4 5, जितने भी आपके points हैं you have to pre-plan them. but अगर आप friends के साथ बातचीत करें या अपनी family के साथ बातचीत करें तो उसमें आपको जो है it does not matter आपका जो भी sequence है, you can be informal, you can be conversational. Okay, Sajjar Rasool, thank you so much for your compliment, and Ijaz Ahmed Lashari, thank you so much for your compliment as well. अच्छा, अगर हम इंटेंशनल लैंग्वेज की बात करें तो इसमें मैं आपको एग्जांपल दूंगी मिशेल ओबामा की. नाउ शी इज़ नोन फॉर हर फ्रेज़, जब भी वो जो है फ्रेज़ इस्तेमाल लाइक शी वुड ऑलवेज से व्हेन दे गो लो वी गो हाई, और ये ऐसी बात है, ऐसा फ्रेज़ है जो कि वो इंटेंशनली चूज़ करती हैं फॉर द सिंपल रीज़न कि ये जो मैसेज है इट इंस्पायर्स रिजिलियंस एंड ग्रेस इन चैलेंजिंग टाइम्स. सो स्पेशली जो है व्हेन यू आर फेसिंग क्रिटिसिज्म, सो जो ऐसे फ्रेजेस हैं दीज हेल्प यू अ लॉट. सो दिस इज़ वन ऑफ द फ्रेज जो मिशेल ओबामा बहुत जो है शी यूजेस इट वेरी रेगुलरली. और अगर हम जो है अपनी फैमिली या वर्क स्पेस में जो है देखें तो जो वर्ड्स हैं इट्स द सेम थिंग. जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं वो आइदर जो है किसी को अपलिफ्ट कर सकते हैं या किसी को भी जो है नीचे भी गिरा सकते हैं. cause when you're using such words, अगर आप जो है like if you're saying I appreciate your efforts, अब ये किसी की भी जो है एनर्जी को, किसी की भी मोटिवेशन, किसी की भी जो है काम को जो है किसी भी इंसान को इनफैक्ट मोटिवेट करते हैं. बट अगर आप ये कहेंगे ओ हाँ जी बस आपने ठीक काम कर दिया है, इसमें थोड़ी और जो है आप एफर्ट पुट इन कर सकते थे, तो ये वाले जो फिक्रा है इट्स नॉट गोइंग टू बूस्ट एनी वंस मोटिवेशन, या ये जो है दिस इज़ गोइंग टू बी मोर ऑफ अ डेरोगेटरी फीडबैक. सो आपने जो है जब लोगों को बूस्ट करना होता है, चाहे आपकी फैमिली सेटिंग में हो या आपके वर्क इन्वायरमेंट में हो, तो आपने उनको वाकई में बूस्ट करना है जिससे पता चले कि किसी ने अगर मेहनत की है तो आप उसकी मेहनत से खुश हैं, ना कि आप उसमें जो है एक लाइन जो है या आधी लाइन जो है इनकरेजमेंट की करें और जो बाकी का फिक्र है वो आप कहें कि हाँ आप इसमें और मेहनत पुट इन कर सकते हैं. सो अगर आपको लगता भी है कि और मेहनत पुट इन की जा सकती है तो यू कैन कीप दैट फिक्रा फॉर अनदर डे,
बट ये है कि वो जो टाइम है वो जिसमें जो है किसी को खुशी मिली है वो काम करके या वो अप्लॉज के, तो ज़रूरी नहीं उस अप्लॉज के साथ आपने क्रिटिसिज्म भी लाजमी लगाना है. सो यू कैन कीप दैट क्रिटिसिज्म फॉर अनदर टाइम. ओके, काजी नतीम अशरफ आप कह रहे हैं इट मीन्स वी हैव टू थिंक बिफोर वी टॉक. यस, वी हैव टू थिंक, कॉज वो कहते हैं ना कि जिस तरह एक दफ़ा जो है कमान से जो है तीर निकला हुआ वापस नहीं आता, इसी तरीके से आप जो भी बात करते हैं यू कैन नॉट अनवाइंड इट. सो इसीलिए तो वो कहते हैं कि भाई ज़ुबान का आपने बड़ा देखभाल के इस्तेमाल करना होता है. सो आई सिंपली डू नॉट बिलीव दिस थिंग कि भाई जो मुंह में आया आपने बोल दिया. यू हैव टू सी, क्योंकि आपके जो वर्ड्स हैं वो एट टाइम जो है तलवार की तरह काट देते हैं. एंड येस, पीपल एट टाइम्स फाइंड यू वेरी रूड कि भाई जब आप जो है यू डोंट थिंक एंड यू जस्ट स्पीक. आई वोंट से कि भाई हर एक के साथ ही इस तरह होता है या नहीं भी होता, बट येस दोज पीपल हु आर वोकल, okay, I'll give my example. I won't take names of anyone. Yes, I am vocal, but still I do think कि भाई ओके किसी ने अगर मुझे जो है कोई मैसेज दिया है एंड दैट मैसेज इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, हाउ कैन आई मिनिमाइज दैट दैट शेयर क्रिटिसिज्म, या उसको किस तरह मेलो डाउन किया जा सकता है. कॉज इफ I do the same kind of sheer criticism, then there is no difference between the one who is saying those critical things या जो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं. तो अगर मैं भी उसी लेवल पे क्रिटिसाइज करूँगी तो मेरे और उनमें कोई फ़र्क तो होना चाहिए ना. सो फॉर दैट सिंपल रीज़न यू नीड टू मेलो डाउन. यही वजह है कि बहुत दफ़ा आप देखते होंगे कि इफ़ यू आर वर्किंग इन एन हायरार्किकल स्ट्रक्चर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, सो जो टॉप नॉच पे जो मैनेजमेंट होगी दैट वुड बी द वन हु इज़ गोइंग टू बेयर ऑल द ब्रांड, क्योंकि दैट मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल टू सम अदर मैनेजमेंट. सो सारा जो ब्रांड है वो टॉप मैनेजमेंट का उस मैनेजमेंट पे निकलेगा. बट जैसे जैसे जो है मैनेजमेंट से नीचे जो है ट्रेवल डाउन करना शुरू करेगा तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो टूटती जाएगी. और उसकी वजह ये है कि इट ऑल डिपेंड्स कि जो टॉप मैनेजमेंट है हाउ वेल दे आर हैंडलिंग इट. इफ़ दे आर एबल टू हैंडल दैट शेयर क्रिटिसिज्म या स्ट्रेस हैंडल कर सकते हैं. बिकॉज बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस में इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट कि जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं दे कैन नॉट हैंडल द स्ट्रेस, और वो प्रेशर वो हैंडल नहीं कर सकते. सो वो सारा बोगस जो होता है वो जो लोअर हायरार्किकल स्ट्रक्चर में लोग होते हैं उन पे निकल जाता है. सो फॉर दैट वेरी रीज़न आपको जो है इफ़ यू आर द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, या अगर इफ़ यू आर इन दैट पोजीशन कि यू आर द हेड एंड यू आर द टॉप मैनेजमेंट, यू फॉर्म द टॉप tier, तो you have to learn to control your emotions. You have to learn to face stress, and you have to act according to it. And then obviously जब आप जो है अपने nerves को जो है calm रखेंगे तो then you'll be able to deal with the other people in your organization in a normal way. So this is regarding the intentional use of language. अच्छा, काजी नदीम अशरफ आप क्या कह रहे हैं, डिपेंड्स ऑन द हैबिट ऑफ ईच पर्सन. यस, इट डिपेंड्स ऑन द हैबिट ऑफ ईच पर्सन. बाज़ लोग जो है बड़ा नपा तोला बोलते हैं और बाज़ लोग जो है बिल्कुल भी नपा तोला नहीं बोलते. बाज़ लोगों का ये होता है कि भाई हम जितना ज़्यादा जो है यानी मुंह पे मार देंगे तो उतना बेहतर होगा. बट यू आर वेरी मच राइट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन अ पर्सन. एंड देन कौन किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. Because a same person is not the same in every situation. The same person might be a totally different person in a different environment and in a situation. But then there are times when one has to draw one's boundaries, और उसके लिए जो है then at times आप जो है you don't think and you just respond according to the situation, and then at other times you need to do some thinking and then you respond. But that also comes with age. आप जैसे जैसे age करते हैं, grace करते हैं, you gain experiences, you move around with a lot of people, you talk with people who are double triple the age of you, so you learn a lot from them. And then life also teaches you a lot. When life punches you a lot,
तो आपको अच्छा खासा जो है लाइफ सिखा देती है कि हाउ यू शुड रिस्पॉन्ड टू पीपल और हाउ यू शुड रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट सिचुएशन दैट कम योर वे. ओके, आप कह रहे हैं काजी नदीम अशरफ कि इट इज़ एन आर्ट हाउ टू बिहेव. येस, इट इज़ एन आर्ट. फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू इट्स एन आर्ट, बट देन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं विच इज़ इनकलकेटेड इनटू यू राइट फ्रॉम योर चाइल्डहुड, जिसको हम जो है तरबियत कहते हैं. सो बहुत से लोगों में वो जो तरबियत का एलिमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा जो है नुमायाँ होते हैं. एंड जस्ट विथ certain lessons or some lessons you become fine in that art. So आपको ऑटोमेटिकली वो आर्ट आ जाती है. और फिर आपका जिस तरीके से जैसे लोगों के साथ वास्ता पड़ता है और जैसे जैसे लोगों के साथ वास्ता पड़ता है वो भी आपको काफ़ी कुछ सिखा देते हैं. Okay, so another thing is that words can be used as tools of vision and leadership. अच्छा, जब हम इसकी बात करते हैं ना तो अगेन आप देखेंगे कि जो ग्रेट लीडर्स होते हैं ना दे आर पर्पसफुल, और जो उनके जो वर्ड्स होते हैं ना इट कम्युनिकेट्स देयर विजन एंड दैट विजन मोबिलाइजेस पीपल. अगर हम जो है अगेन मोबिलाइज लोगों को भी करते हैं एंड इट ऑल्सो इंस्पायर्स पीपल टू टेक एक्शन. अगर हम नेल्सन मंडेला को देखें तो उनके जो वर्ड्स थे इट ऑलवेज यूनाइटेड, इनफैक्ट इट यूनाइटेड डिवाइडेड साउथ अफ्रीका. और बजाय कि जो है लाइक ही स्पेंड सो मेनी ईयर्स इन जेल और फिर जो उन्होंने वहाँ पर सूरत हाल फेस की, सो इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग अबाउट revenge and spite for the people who had done bad to him, rather he would yani even after his release from the prison he would always emphasize on forgiveness and reconciliation. और जो उनके words थे it shaped the path towards peace and वो जो peace था it led to a peaceful transition of the country. और अगर हम जो है लीडरशिप रोल्स की बात करें तो इवन इन वर्क स्पेस जो लीडरशिप रोल्स होते हैं या इवन इन वर्क हो या कम्युनिटी हो, यू नीड टू यूज़ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. इवन एज अ लीडर अगर आप जो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं यूज़ करते सो देन यू आर नॉट गोइंग टू सी एनी एक्शन. So if you want to mobilize the crowd, or if you want to mobilize your country, or if you want people to listen to you, then you need to use positive reinforcement or positive words. And your words, they need to they have to mean something. उनमें मायने होना चाहिए. अगर words are just words without action and without any vision, so it's not going to have an impact. If you want to create an impact, firstly तो जो है you need to show people what kind of leader you are, how good leader you are. और आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो तो ऑटोमेटिकली शो हो जाती हैं कि भाई आप लोगों के लिए कितना कर रहे हैं, या आपके मुल्क के लोग जो सफ़र कर रहे हैं आप उस सफरिंग को कम करने के लिए what are you doing. Is it sufficient for them to live a healthy life, or are they having that life जिसके लिए they are living in your country. But then if they don't have that kind of life, and if everyday people are being killed or they are murdered or they commit suicides, so it only shows you're not a good leader. So then you have to change your strategy and you have to learn how to be a leader, because leadership doesn't come just by name. By name आप किसी को नहीं कह सकते कि ओके भाई आई एम द लीडर. यू हैव टू प्रूव योर वर्थ, क्योंकि जब आप अपनी वर्थ प्रूव करेंगे तभी लोग आपको जो है लीडर मानेंगे. एंड दिस गोज फॉर एवरीवन. इट्स नॉट जस्ट फॉर लीडर्स, इट्स फॉर एवरीवन हु आर इन हु आर सर्विंग इन डिफरेंट फील्ड्स. चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, चाहे वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, या वैसे वो एक्टिविस्ट हैं, या चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन वर्क कर रहे हैं, या वो सोशल वर्क कर रहे हैं, या वो यूट्यूबर्स हैं, जो भी हैं. unless and until you prove your worth, only then people are going to listen to you. If you are unable to prove your worth, then no one's going to listen to you. Then वाकई में आप पे हर वक्त जो है लोग क्रिटिसाइज करेंगे, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं. But yes, if you teach them things which is going to impact their life in the positive way. Now I can offer you tips, or I can tell you different essences of life as per the life I have lived or the experiences I have faced, चाहे वो personal हो चाहे वो professional हो. So I can
only share those experiences. But yes, when many people come together and you get to learn a lot from their experiences, only then you are able to create that impact जो कि आप create करना चाह रहे हैं. And whatever you're saying, it has to drive positive reinforcement, ताकि लोग, they don't think कि भाई life is not worth living. Instead, they change their mindset. They can find some kind of motivation and inspiration from someone or some place, and then they can, make their life fruitful rather than just thinking about the negativities of life. Okay, so अगर हम जो मज़ीद बात करें इसकी वर्ड्स की, तो जो इंटरनल डायलॉग्स होते हैं, दे ऑल्सो शेप द फ्यूचर. और वो किस तरीके से शेप करते हैं कि भाई when you speak purposeful, and there's a reason for those dialogues, and that's why you are having those dialogues. Or that's the very reason कि भाई whatever you are saying, it has to have a purpose. और आपके वर्ड्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. सो अगर आप जो है लाइक इफ़ यू आर जस्ट सेइंग कि भाई आई कांट डू इट एंड ये तो हो ही नहीं सकता, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, सो इट्स नॉट गोइंग टू क्रिएट समथिंग पॉजिटिव. रादर इससे जो है डेरोगेटरी इफेक्ट आएगा, या इससे जो है जो लोग हैं दे आर गोइंग टू बी डिस्करेज. सो यू डोंट वांट टू डिस्करेज पीपल, रादर देन इफ़ जस्ट सेइंग दिस थिंग कि ओके आई विल ट्राई. जब इसमें एक ट्राई का एलिमेंट आ जाता है तो ऑटोमेटिकली बहुत से जहन हैं, बहुत से माइंड्स हैं जो कि चेंज हो जाते हैं. कॉज पीपल देन लुक टूवर्ड समथिंग पॉजिटिव एंड दे डोंट फील डेरोगेटरी. दे डोंट थिंक कि ओके भाई ये चीज़ तो वाकई में हो नहीं सकती. देन दे हैव समथिंग पॉजिटिव टू थिंक अबाउट एंड पॉन्डर अबाउट एंड टू चेंज देयर लाइफ्स एज वेल. सो this is this is all what I wanted to share today's session. It's more of thinking, it's more of analyzing different things. Now today जब आप लोग बैठें, जब आप लोग सोने के लिए जो है लेटें, just think about it कि आज के पूरे दिन में how were your words, like what impact did they create on different people जिनके साथ भी आपकी कन्वर्सेशन हुई हो या आपकी बातचीत हुई हो. And then you'll be it would be very easy for you to analyze कि how people feel when you connect with them. चाहे आप उनके साथ जो है वर्ड्स के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, या चाहे आप उनके साथ जो है इमोशंस के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, या इवन यू आर जस्ट लिसनिंग टू देम. सो वट एवर यू आर डूइंग, ये सारे इमोशंस हैं, ये सारे वे ऑफ एक्सप्रेशन हैं जो कि आप लोगों के साथ करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं. एंड देन यू एग्जैक्टली नो how people feel when you talk to them. Okay, so if anyone has any question, I can take your questions. Qazi Nadeem Ashraf, आप कह रहे हैं कि some of them are God gifted. God gifted in what sense? Like the power of talking? Are you talking about those people who know how to express themselves or use words? Yes, we need to learn vocabulary. We need to learn vocabulary according to the situation. Cause what I think कि भाई आपकी vocabulary जो होनी चाहिए ना, it should be easy enough कि लोगों को जो है समझ आ जाए. And then it all depends, cause there are many times आपने बहुत से जो है ना if you attend conferences or workshops, तो उसमें आप देखें जितनी आपकी प्लेन लैंग्वेज होगी ना, उतनी आसानी से लोग उसको समझ सकेंगे. बट ये है कि आप अगर अपनी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा हैवी जार्गन यूज़ करेंगे, ये सोच के कि भाई ये तो सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट से रिलेटेड ये जार्गन भी यूज़ कर लो, वो जार्गन भी यूज़ कर लो, तो देन पीपल आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड. सिर्फ देयर वुड बी वेरी माइन्यूट अमाउंट ऑफ पीपल हु विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दोज जार्गन्स. बट द मोर ईजियर योर लैंग्वेज इज, द मोर comprehensible it is, the more easy it is to digest, then people are going to be able to understand what do you mean and what is the purpose of this whole conference. Because obviously when people go to conferences, they want to learn something, they want to collaborate with like-minded people, they want to drive some kind of business, agar if it's a business conference. And then if it's just a conference, it's an educational conference, so you want to learn by interacting with different people. और वो इंटरेक्शन आपकी तभी हो सकती है when you are able to understand what people are doing there.
So just being a PhD or just being a very educated person, that is not sufficient if you are not able to communicate yourself to the general masses. तो फिर आपकी उस PhD होने का या आपके इतने जो एजुकेटेड होने का कोई फ़ायदा नहीं. सो इफ़ यू वांट टू रियली इम्पैक्ट पीपल, देन आपको अपनी लैंग्वेज भी उसी तरीके से लोगों के लिहाज से ईजी बनानी पड़नी है. सो एवरी वन इज़ एबल टू बेनिफिट फ्रॉम इट. Okay, I can see Qazi Nadeem Ashraf, you at the top of my screen. So, okay, now so you're gone offline as well. Okay, it's no problem. So, अगर आप लोगों के कोई question हैं तो you can let me know about those questions in the inbox. So I'll take your questions as well. और अगर अभी आप लोगों के जहन में कोई question नहीं है तो you can still let me know और मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा. I'll answer you over there as well. And now I'll have another session with you on Saturday. So not tomorrow, cause due to the due to the whole timetable, it was changed this week. But from next week, inshallah, from Monday, I'll be having my session. So I have my sessions 3 times a week, which is Monday, Wednesday, and it's Friday. So अगर जो है दिन आगे पीछे हो जाए, like if I can't take a session on Monday, then I'll take it on Tuesday, और फिर वो उसके मुताबिक alternate days पे move कर जाएगा. But mostly I try to have my sessions on Monday, Wednesday and Friday. So इंशाल्लाह आप लोगों से जो है सैटरडे को मुलाकात होगी. एंड अगर मैं सैटरडे को इन एनी केस ना आ सकूं तो देन आप लोगों से मंडे को मुलाकात होगी. एंड एनी वन हु वॉन्ट्स मी टू डिस्कस एनी टॉपिक, you can also send your topics in my inbox. Qazi Nadeem Ashraf, thank you so much for your compliment, and thank you for bearing with me till the end, because I know many people are watching but many have gone. So let's see कहाँ गए, still इधर ही होंगे, देख रहे होंगे. Okay, so till Saturday, bye bye and take care. Allah Hafiz.